প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা এখন দেখছেন ভারতের জলশক্তি মন্ত্রকের অধীনে একটি দারুণ অভিনব অনুষ্ঠান, যা সচরাচর দেখা যায় না। আজকে এই জলশক্তি মন্ত্রকের অধীনস্থ ডিজি, এনএমসিজি অ্যান্ড পিডি ও এনআরসিডি আইএএস অধিকর্তা শ্রী জি অশোক কুমার এসেছিলেন ফরাক্কা গান্ধীঘাট সংলগ্ন হিলসা রেঞ্চিং স্টেশনের তৃতীয় দফার দ্বারোদ্ঘাটন করতে। উনি এসে প্রথমে গঙ্গা পূজায় অংশগ্রহণ করেন। এরপর তিনি এনটিপিসি এইচওপি ফরাক্কা ব্যারেজ জেনারেল ম্যানেজার, জঙ্গিপুর এসডিএম, ফরাক্কা ব্লক আধিকারিক সহ হিলসা রেঞ্জিং স্টেশনে আধিকারিকরা সকলেই সেই অংশগুলি যেখানে ফরাক্কা হিলসা রেঞ্চিং স্টেশন রয়েছেন সমস্ত এলাকাটি পরিভ্রমণ করেন এবং নিরীক্ষণ করেন। এটি একটি ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের সম্মিলিত অনুষ্ঠান, যাতে করে নদীর জলের স্বচ্ছতা সহ জলজ প্রাণী সংরক্ষণ ও তাদের বিপদের সময় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা, এক কথায় জলজ পরিবেশ ঠিক রাখতে ক্রমাগত নদী বক্ষ থেকে হারিয়ে যাওয়া মাছের প্রযুক্তিগুলি সংরক্ষণ করা এবং আবার নদীবক্ষে ছাড়া। আজ প্রায় 200 ইলিশ গঙ্গাবক্ষে ছাড়া হলো। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মাছ যেগুলি গঙ্গাবক্ষে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, জলের মধ্যে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেই সমস্ত মাছগুলি আজ গঙ্গাবক্ষে ছাড়া হলো, যার চিত্র আপনারা আমাদের মিডিয়ার পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, 2014 সাল থেকে আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আদেশে যাতে আগামী দিনের নদীর পর্যাবরণ ও নদীর পরিবেশ ঠিক থাকে, জলজ প্রাণীরা ঠিক থাকতে পারে, সেজন্য সকলে মিলে আমাদেরকে প্রচেষ্টা করতে হবে বলে তিনি জানান। আরও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি কি জানালেন আমরা দেখাবো আপনাদেরকে। দেখতে থাকুন। ভাবধারা চ্যানেল আপনাদের দেখাচ্ছে কিভাবে, কেন এই জলজ প্রাণীদের সংরক্ষণ করা হচ্ছে। দুঃখের বিষয়, আজকের দিনে আমাদেরকে সেই ডারউইনের তত্ত্ব সার্ভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট, এটাকে ঠিক রাখার জন্য আজকে সার্ভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট শুধু নয়, সার্ভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট থাকতে হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের মানুষের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য, মানুষের অজ্ঞানতার জন্য, মানুষের চাহিদার জন্য। কিন্তু কতটুকু আমাদের চাহিদা রাখতে হবে সেটাও আজকে আমাদের ভাববার সময় এসে গেছে। তাই আপনাদের বলবো, আপনারা দেখুন কেন আজকে নদীবক্ষে এই মাছগুলি ছাড়া হচ্ছে, কেন, কিসের জন্য নদীর পরিবেশ, সমস্ত রকমের পর্যাবরণের পরিবেশ ঠিক রাখতে সরকার কী পরিমাণে অংশগ্রহণ করেছে। এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো, আমরা যারা এলাকার জনসাধারণ, এছাড়াও যারা আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন, তাদের কাছে অনুরোধ রইল যাতে নদীবক্ষ দূষিত না হয়, নদীবক্ষ যাতে স্বচ্ছ থাকে, নদীর বা জলজ প্রাণীগুলি যাতে কোনো রকম বিপদে না পড়ে, মানুষ যাতে তার প্রয়োজন মতো নদীর জল ব্যবহার করে এবং নদীর জলজ প্রাণীদেরকে সংরক্ষণ করে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে, সেই চিন্তাভাবনা নিয়ে যাতে আগামী দিনে আমরা আমাদের এই পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি। দেখতে থাকুন ভাবধারা চ্যানেলে। আপনাদের সাথে আমি সুভাষ, আমার সাথে রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম। দেখতে থাকুন ভারতের কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার সম্মিলিতভাবে কিভাবে আজকে আমাদের সুরক্ষার জন্য এই নদীবক্ষে মাছ ছাড়ার অনুষ্ঠান, এই শুধু মাছ ছাড়ার অনুষ্ঠানকে ছোট্ট করে দেখলে চলবে না, আমাদেরকে দেখতে হবে যাতে আমরা আগামী দিনে আমাদের পরবর্তী নেক্সট জেনারেশনকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতে তারা থাকতে পারে, তাদের শিক্ষা দীক্ষা সঠিকভাবে হয়, সেই জন্য আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন ভারত জলশক্তি মন্ত্রকের অধীনে ডিজি, এনএমসিজি অ্যান্ড পিডি, এনআরসিডির আইএএস অধিকর্তা শ্রীজি অশোক কুমার। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंगा की सफाई के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था।
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत पूरे गंगा नदी और गंगे के ट्रिब्यूटरीज यमुना गोदावरी ऐसे नदियों में काफ़ी पोल्यूशन अबेटमेंट काम हुआ, जहाँ पे उसका प्रदूषण कम करने के लिए काम हो रहे हैं। पिछले 8 साल में तकरीबन 40,000 करोड़ का काम सैंक्शन मंजूरी दी चुके हैं और बहुत सारे काम हो चुका भी है। पिछले 8 साल के प्रयास में गंगा जी मेन स्टेम एकदम साफ हो चुका है और उनके ट्रिब्यूटरीज भी साफ हो रहे हैं। उसका प्रमाण यूएन ने भी पिछले साल हमको नेशनल मिशन को क्लीन गंगा को नमामि गंगे को दुनिया के टॉप 10 इको रिस्ट्रिक्शन फ्लैगशिप प्रोग्राम की निर्णय किया गया है। 2019 में कानपुर में नेशनल गंगा मिशन कमिटी काउंसिल की मीटिंग में, उसके बाद 2022 में यहाँ पे कलकत्ता में भी नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग हुआ, जहाँ पे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होते हैं। उसमें उन्होंने लोगों को गंगा नदी से जोड़ने के लिए अर्थ गंगा का काम एक कंसेप्ट दिया था। अर्थ गंगा के तहत नदी के पास रहने वाले लोगों को नदी से जोड़ने के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए अनेक कार्यक्रम करने के लिए बोला गया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है ये फिशरी डिपार्टमेंट सिफरी के द्वारा हम फिश रांची का कार्यक्रम कर चुके हैं। फिश रांची का मतलब है कि नदी, हम सब जानते हैं कि नदी से मछली को पकड़ना, ये तो नदी में मछलियों को वापस डालने का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम 2017 से करते आ रहे हैं, बट पिछले 2-3 साल में काफ़ी इसको बढ़ावा मिला गया। एक फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 आज शुरू कर रहे हैं। फ़ेज़ 2 में भी 30 करोड़ रुपए के मछली और अनेक एक्टिविटी है। उसमें तकरीबन 1 करोड़ मछली, इंडियन मछली, IMC बोलते हैं, इंडियन मेजर कार्प मछलियों को नदी में डाला गया था। 1 लाख हिल्सा मछली को भी नदी में डाला गया था। एक नदी में उनको इसका पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए भी काफ़ी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये एक हम मानते हैं कि इंडिकेटर स्पीशीज़ है, मतलब नदी में अच्छा पानी आएगा तो उनका संख्या भी बढ़ जाएगा। तो ये पिछले कई सालों में जितने भी हम मछली डाले उसका संख्या बढ़ गया है। इसका एक इंडिकेशन है कि नदी में पानी अच्छा हो रहा है। और सिफरी के नेतृत्व में डॉक्टर BK दास साहब हैं, उनके टीम ने पिछले 3 सालों में कई जगह पे मछली रैंचिंग करने के कार्यक्रम किए थे। 2022 में फ़ेज़ 2 रैंचिंग मैंने भी मायापुर के किया था। तो मैंने बताया पिछले 3-4 साल में 1 करोड़ मछलियाँ हमने वापस नदी में डाला है, इंडियन मेजर कार्प्स, और 1 लाख हिल्सा को भी दिया है। अभी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए फ़ेज़ 3 आज सैंक्शन कर रहे हैं। इसमें भी 31 करोड़ के मछलियों को डेवलप के पैसे के लागत में 31 करोड़ रुपए के लागत में एक प्रोग्राम फ़ेज़ 3 चल रहा है, जिसमें मछलियों को, छोटे मछलियों को पालना और उसको नदी में छोड़ने का कार्यक्रम होगा। आज यहाँ पे फराका में 2 लाख छोटे इंडियन मेजर कार्प छोड़ दिए गए, 20,000 हिल्सा छोड़े गए थे और कई कुछ छोटे मछली छोड़े गए थे। ये जैसे आप जानते हैं प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार सब डिपार्टमेंट को एक साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया गया है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। उसमें हमारे पास फराका के GM है, फराका के स्टाफ भी है, NTPC की भी स्टाफ है। तो NTPC, फराका और हमारे नमामि गंगे, स्टेट गवर्नमेंट फिशरी डिपार्टमेंट सब मिलके गंगा नदी को साफ़ करने में लगे हुए हैं। बहुत सारा कोऑपरेशन स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने तकरीबन 30 प्रोजेक्ट, अबाउट 20-25 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बंगाल में किया है। काफ़ी प्रोग्राम का भी STPs का भी इनॉग्रेशन पिछले साल प्रधानमंत्री ने किया था। अभी बहुत सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। आदि गंगा में STP का टेंडर हो चुका है। बारकपुर, इसमें हौराबाड़ी, महेशथला, सब जगह में STP का काम चल रहा है। तो साथ ही साथ
हमारा वाटर रीयूज़ का भी कार्यक्रम चल रहा है जिसमें एनटीपीसी के योगदान है। एनटीपीसी हमसे अच्छा ट्रीटेड पानी लेके उसके प्रोजेक्ट्स में करते हैं। तो ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में सब डिपार्टमेंट एक साथ मिलके गंगा मैया को साफ रखने के लिए, गंगा मैया जितने भी मछलियाँ हैं उसी को बढ़ावा देने के लिए, देशी मछलियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा हिल्सा छोड़ा है यहाँ पर? 200 हिल्सा हम छोड़ेंगे। क्या क्या मछली छोड़े उसके साथ? इसके साथ इंडियन मेजर का रोहू, कटला, मृगल वो 2 लाख छोड़े हैं। बाकी टेंगरा, पापदा, पुटी माछ ये 50,000 छोड़े हैं और प्रॉन भी उसमें। जिस तरह गंगा में पोल्यूशन हो रहा है, ये जो आप लोग ये करोड़ों रुपया का जो सरकार ने बजट में रखा है, तो पोल्यूशन से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? वो जिस तरह से पोल्यूशन नहीं हो रहा है वो गलत, आप गलत बात है। बिकॉज पहले था, अभी नहीं है। सर पहले मैं बताता हूँ आपको बताता हूँ ना। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो 10 से 15 साल पहले अच्छा पोल्यूशन था। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक गंगा जी में, मेन स्ट्रीम गंगा में बहुत अच्छा पानी आ रहा है। बेहतरीन, हम पीने की बात नहीं कर रहे हैं, स्नान करने के लिए अच्छा पानी है। वो यूएन ने भी सर्टिफाइड किया है, यहाँ पे साइंटिस्ट ने भी सर्टिफाई किया है। हमारे मछलियों का नंबर भी बढ़ गया है। डॉल्फिन की संख्या 2000 से अभी 5000 बढ़ गया है। ये इंडिकेशन है, सर्टिफिकेट है कि गंगा में पानी अच्छा हो रहा है। सर, यहाँ का जो मेजर प्रॉब्लम है, सरकार से सब बहुत व्यवस्था ले रहा है, लेकिन यहाँ देखा जाता है बाजार में भी छोटा छोटा हिल्सा, जो बॉबी हिल्सा बोलता है, वो यहाँ बहुत ज़्यादा मारता है पब्लिक। और जो मछुआरे लोग होता है बहुत ज़्यादा मारता है। इसके लिए क्यों नहीं कोई व्यवस्था एक्शन लेता है? देखो, इसमें जैसे मैंने बताया, प्रधानमंत्री का आदेश है कि होल ऑफ गवर्नमेंट सब मिलकर काम करना है। गवर्नमेंट के सब डिपार्टमेंट, ये भी किसकी जिम्मेदारी बनते हैं? हम सबकी जिम्मेदारी बनते हैं, क्योंकि ये सरकार का ही काम